नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। हम पंजाब की चुनावी यात्रा पर हैं। जायजा लेंगे बरनाला विधानसभा की। आपको हम इस सफर में ले चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं महल कलां। ये विधानसभा जो है ये बरनाला जिला में आती है और हमारे साथ एक नौजवान है, खेती से जुड़े हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं और परमिंदर सिंह इनका नाम है। जाते जाते हमने इनको पकड़ा और हमने कहा कि कुछ अलग बात की जाए, लोगों के, जनता को, जो यहाँ जनता है उसके मूड को जाना जाए। तो बरनाला ज़िले से आते हैं। अब यहाँ पर बरनाला ज़िले में भदौड़ आता है, वहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बरनाला से मनीष बंसल जो कि सबसे युवा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो लड़ रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हम खेतों में खड़े हैं, हरियाली आप देख सकते हैं। इसी फसल और आने वाली नस्ल के लिए पंजाब का किसान 1 साल तक दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा और अंत में हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और जो 3 काले कानून थे वो वापस लिए गए। लेकिन इसमें 700 जो शहादत दी गई, लोग अभी उस गम को भूले भी नहीं हैं। वो एक पंजाब की राजनीति में बड़ा मुद्दा भी है। ये अलग बात है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन शहरी इलाकों के बाद अगर वो गाँव में जाते हैं तो उनका बहिष्कार भी हो रहा है। तो परमिंदर जी, किसानी, खेती, खलिहान और 3 काले कानून क्या अभी लोगों के जहन में जिंदा है? हाँ जी, परमिंदर नारायण जी। आप हिंदी बोल नहीं, पंजाबी च गल करांगे। बिल्कुल किसान दा पुत्ता, हाँ। मैं पंजाबी च गल करूंगा। जी, इत्थों दी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ अपने बरनाला, आपां इधर हाईवे आ, इधर आ जी। महल कलां हल्के च खड़े हैं। हुण असीं पवन बांसल जी दी साडे बरनाले नूं बहुत देण आ। रेलवे स्टेशन पवन बांसल जी लैके आए ते नाल भदौड़ चन्नी जी लड़ रहे आ, जो साडे मुख मंत्री आ। उन्हां दी भी पंजाब नूं बहुत देण। 111 दिनां च ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ CM ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਥੋਪੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ, 700 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਐ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10-10 ਟਰਾਲੀਆਂ 10-10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗਏ ਆ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ खेती किवें चल रही है? हरियाली बहुत आ ते चुनावी मौसम भी है ते गेहूं दी फसलां भी आ गईयां ने। खेती बहुत वधिया चल रही है जी। बाकी ये साडी मां गी, ये धरती, ये बहुत वधिया, मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੋ, बहुत वधिया। यही फसलों वास्ते लड़े सी सारे लोग? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हाँ गए। मैं मोर्चे च गया,
ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं 1 महीना बैठा रहा मोर्चे पे। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। मैं भी किसान परिवार तो हूं ना, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੱਪਣ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ, ਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦੌੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ। ਬੱਟ ਨਾ ਬੱਟ ਹਾਂਜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਧਰ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏਰੀਆ। ਇੱਧਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੂਸ आइकॉन, वो टक्कर दे रहा है। और खुशी की बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हुए हैं। हाँ। मेरे से जूनियर हैं। अच्छा, मैं एक दिन मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे पहचाना कि आप मेरे सीनियर हैं। मैंने उनसे भी बात की और उन्होंने अच्छा काम किया है यूथ को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने स्टेडियम वगैरह बनाया। मैं उनके इलाके पर जाके भी दौरा करूंगा, लेकिन इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपके फार्म हाउस की कुछ तस्वीरें भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे और मक्की की रोटी और सरसों का साग जरूर आपके साथ खाएंगे। चुनावी माहौल गांव में क्या है, क्योंकि इस इलाके में हम पिछले चुनाव को देखें तो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने जो मौजूदा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं उनको उतारा है, ताकि इस पूरे बेल्ट में कांग्रेस जो है वो पैठ बनाए। और क्योंकि ये इलाका पहले कांग्रेसी ही था, कांग्रेस का ही इलाका था, यहाँ से बड़े बड़े लोग यहाँ से चुनाव लड़कर जीते हैं। ओवरऑल अब सिचुएशन क्या, गाँव में क्या देखते हैं, क्योंकि बरनाला एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इस जिले में आती है। गांव में चर्चा किस बात की है? चर्चा ये है जी, नहीं वैसे मैं एक चीज बताऊं, आप बीच बीच में हिंदी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हिंदी सुन लेते हैं आपकी, एक बार हिंदी सुन लेते हैं। जो चुनाव है ना इधर पंजाब में, जो चन्नी साहब ने 111 दिन में किया वो किसी ने नहीं किया, और जो भगवंत मान है इधर सीएम चेहरा आपका, वो इस हल्के का एमपी है, 2 बार एमपी बना, पर इस गांव में वो देखा नहीं गया कभी, कभी नहीं देखा उसे। अब चुटकुले थोड़ी सुनेंगे लोग। अब जो काम हुआ है गांव में, सड़कें बनी है, स्कूल बने हैं, अपग्रेड हुआ है। इधर हमारा न्यालूवाड़ गांव है महल कलां हल्के में, उसको अपग्रेड किया। नहीं बच्चे आगे दद्दाहुर जाते थे पैदल 3-4 किलोमीटर, वो अपग्रेड हुआ स्कूल बच्चों को। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो स्कूल है वो नंबर 1 खुद मोदी सरकार के डिपार्टमेंट ने दिया कि पंजाब का जो स्कूली व्यवस्था है वो नंबर 1 लेके आया है। और इस पर आम आदमी पार्टी भी बहुत बयानबाजी कर रही थी, लेकिन सच ये है कि जो पंजाब के कांग्रेस राज में स्कूल है वो नंबर 1 है। तो आपने एक शिक्षा की बात तो की ज़रूर, लेकिन जिस तरह से ये खेती और किसानी है, चन्नी सरकार ने बिजली माफ़ किए हैं, बिजली के बिल माफ़ किए हैं, वो आपको लगता है एक अच्छा पॉइंट होगा इस चुनाव में? क्या लोग
उस आधार पर बिजली के बिल जो माफ़ किए हैं, 2 किलोवाट और 7 किलोवाट के कम किए हैं, उसमें भी माफ़ किए हैं। 59 लाख लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। 20 लाख लोगों को फ़ायदा 2 किलोवाट में हुआ है, 7 किलोवाट में 59 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है। और किसानी के जो बिजली के बिल और भी चीज़ें जो माफ़ किए हैं, उससे आपको लगता है कि लोग इस बात का विचार कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रति सुझाव जो है वो झुकाव है। हाँ जी, जो चन्नी साहब ने बिजली के बिल माफ़ किए है, जो मतलब गरीब आदमी था उसका बिल आ जाता था 3,000 4,000, इनकम के हिसाब से वो ज़्यादा था। अब उनका बिल आया लास्ट में देखा 500 रुपये, 1,000 रुपये, वो सभी गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एक और चीज हाँ। पूछना चाहता हूँ, आपके खेत खलिहान बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लग रहे हैं और जो बड़े बड़े शहरों में लगते हैं रहते हैं, वो लोग भी कहते सोचेंगे ये तस्वीरें देख के कि ये कितनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। हालांकि कोरोना काल में तो ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए। तो जब आप लोग मोर्चे पे थे तो फिर खेती कैसे देखे? खेती ऐसे था, मान लो हमारे 2 ब्रदर है, एक मोर्चे पर होता था, एक इधर खेत में। बाकी जो गांव के लोग थे एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा तो करते। खेती प्रभावित हुई थी उस दौर में? हुई, प्रभावित हुई। और हम जब हमारा खेत ही ना रहता फिर खेती क्या करते, ये कानून वापस ना होते, खेती क्या करते। इधर खेती का जो MSP है वो ही ना मिलता हमें, फिर खेत का क्या फायदा। हमने अपने खेत के लिए कुर्बानी दी और अन्नदाता है, इससे जो जहाँ का गेहूं है वो बाहर चला जाता है, मंडियों में जाता है, सब ये प्रभाव पाता है। पंजाब का जो स्टेट है ना, सभी स्टेटों पर वो अन्न देता है। वो हमारे साथ हरियाणा भी जुड़ गया, यूपी, सभी जो किसान भाई थे इंडिया के एक जगह इकट्ठे हो गए। जब हमारे पत्रकार भाई आप उधर मिले आपसे, तो किसान भी, आप भी किसान हो, आपको मालूम ही होगा, आपसे भी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपको कैसे लगा? नहीं, वो दर्द अभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने वो दौर देखे हैं कि किस तरह से लोग ट्रॉलियों में रहे। आप भी रहे कि नहीं? रहना पड़ेगा। ठंड, बरसात, आंधी, तूफान, सब में पूरा साल सड़कों पे गुजारे, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, टेंटों में रहे। हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किसान जैसे आप, आपकी इतनी जमीनें देख के मुझे खुशी होती है